یہ گوچو کا व्लॉग روزانہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بہت بڑا ریزن ہے۔ یہ جب رات کو سر کے گھر جاتا ہے व्लॉग اینڈ ہو جاتا ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے اس کے व्लॉग ہی نہیں آتا ہے۔ پھر تھرڈ ڈے آتا ہے، سٹو کے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات ویڈیو بنا کے وہاں چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سویرے یہ بچے چھوڑے اپنی پھڑوا کے، یا پھر وہاں جائے پھڑوائے شوٹنگ کرنے ناشتہ والا، تو اس کے پھٹی پڑی ہے کر کر کے 4-5 سال سے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، رات والا شوٹنگ اینڈ کر کے پھڑوانے سے اچھا ہے دوسرا روز وہ لوگ ہی نہیں بنا۔ پھر سٹو کے پچھواڑا صاف کرتے 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 رات جا کے وہاں پہ اینڈ کر کے پھر ایک وہ لوگ بنا دو، پھر چھوڑ دو۔ سویرے اٹھے والا نہیں بنانا ہے بس، کیونکہ پھٹا ہوا خسرے کے 5 سال ہو گئی ہے یہ حرکت کر کر کے پھٹی پڑی ہے۔ بیچ بیچ میں بریک ملتی ہے، سال والا ملت رہا پہلے، ابھی 4-5 مہینے والا ملے کو سر کو، جب اس کے آدمی لے جاتا ہے گاؤں ارشد، وہیں پہ منمنیا کے جب دیکھو منہ بنا رہتا ہے، سڑا ہوا منہ۔ اس کے پیچھے بھی بہت بڑکا راز ہے۔ شی از ہیپی وتھ کوثر، اور سٹو کے ساتھ شی گوٹ اے سڑا ہوا منہ وتھ گھونچو، سڑا ہوا منہ ود ہر سبلنگس، سڑا ہوا منہ، کان کے نیچے 2 چپٹاؤ، دیکھ کیسے سڑا منہ اچھا ہو جاتا ہے۔ 2 چپاٹ کی ضرورت ہے۔ ای اعلیٰ ہما سولوشن نہیں ہے، اس سٹو کے سپٹرینس کے ہے۔ جب کوثر کے سڑا منہ والا گھوچو بلوگ ڈالتا ہے، دے اپلائی دی سیم ٹو کوثر، ٹھیک ہے؟ مار کان کے نیچے من 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 کریلا بند کرے، بچا کس کے لال کر کن پٹی ہو کر۔ دوبارہ سڑا منہ سڑے گا ہی نہیں، سڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ مچڑ کا فیا بیان آیا کہ ایک آدمی دوسرا بار کیوں شادی کرتا ہے؟ جو جواب وہ دیتا ہے، تو مچڑ تم تو یہاں پہ دوسری شادی کے حقدار ہو، تمہاری بیگم میں خامی ہے نا، بچے نہیں دیتی تمہیں، یا پھر خامی تم میں ہے؟ دوسرا بار کر لو گے، پھر بچے نہ ہوں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مچڑ کی بیماری، وہ باپ نہیں بن سکتا، وہ ایک دم بالکل اسی کشتی میں سوار ہے جو گھوچو لے کے ڈوب رہا ہے یوٹیوب پہ نا، سیم 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 نہیں، سیم 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 سیم۔ تو مبارک ہو گھوچو، یو آر ناٹ دا اونلی نامرد ان دس فیملی، یو گوٹ دا چاچا مچھڑ نامرد۔ لگتا ہے نا اس سٹو کے نصیب میں نامرد تھے، پہلے مچڑ مانگت رہا اس سے شادی کرے، اس سے ہو جاتا تب بھی سٹو باہر بچے پیدا کرتی، گوچو سے ہو گیا تب بھی باہر پیدا کر رہی ہے، بیچاری کے نصیب خراب ہے۔ وہ کہتے بھی دوسری شادی نا سنت ہے، سنت تو ایسی ہے، اگر آپ کے یہاں نا بچے نہیں ہو رہے ہیں، دوسری شادی کرنا، یا بیوی میں کچھ تلخ کلامی ہو، یا بیوی کا مقصد اس کی زبردستی شادی کی گئی ہو، یا ایسے، پھر وہ کہتا ہے نہیں جی میں اپنی لائف کے لیے بھی ایک اور شادی کروں گا جہاں میں خوش رہوں، تو ایسی بات تو کوئی بھی نہیں تھی، تو ساجد صاحب نے پھر شادی کی۔ مچڑ کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا سنت ہے، لیکن ایسا تب ہے جب عورت بچہ نہیں دے پائے، بندہ کے زبردستی شادی ہو جائے، پیار اور کہیں ہے یہ کہیں اور ہے، مطلب کو سر پیار نہیں تھی نا، یہ مچڑ کہتا ہے ایسا کوئی نہیں تھا نا، اب بیوی میں خامی ہو تب کر لے نا ایسے کچھ، تو مچڑ کہتا ہے ایسے تو کوئی بات نہیں تھی، ارے صدیہ پہ کہاں ہے تو بات ہوگی۔ تو مچڑ کہتا ہے کہ گھوچو نے پھر بھی شادی کی، تو گھوچو خسرے نامرد بتا کیوں کی؟ سٹو کے ساتھ تو تم نے ایک بچہ نہیں جنمایا، خسرا پن لے کے سر پہ ناچ رہا ہے۔ کومنٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں کچھی خریدنے کی اوقات نہیں ہے تو کیا شادی کرے گا؟ تو نامرد خسرو تو آ کے بتاؤ نا، تم نے تو ایسی کوئی حرکت تمہاری تھی نہیں، لیکن تیری بیوی دوسرے مردوں سے بچے پیدا کر رہی تھی، یہاں پہ تو پتہ چل رہا ہے تو سچی مچی کچھ رہا ہے، اور تیری بیوی بد چلن ہے نا، پھر جیجا کے ساتھ سوتی ہے، تمہاری بڑی سالی نے آ کے کہا نا کہ میرے بندے کے ساتھ سو کے بیٹھی ہے، پھر تمہاری جو ساس ہے وہ تو شادی پہ شادی، شادی پہ شادی، شادی پہ شادی کر کے بیٹھی ہے۔
फिर जो रुबीना है उसे जवान लौंडे चाहिए। अकबर को छोड़ के जवान था वो बुढ़ा डोक्टा, उसे पकड़िए। डोक्टा बुढ़ा हुए लगा भी और जवान ला खोजे। मीठी छुरी के भी ऐसे कुछ हालात था। वो तो ठीक है, उसका अजगर उसके डसता रहता है तो चुपे बैठी है सऊदिया जैसी जगह पे। असगर वीडियो भी बनाया था, अपने सोपड़ा खोल के सामने नाचने की बड़ा शौक है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, गोचू बड़ा आया है, एक वीडियो बनाया है कि हेटर मुझे घेर के खड़े हो गए। तो गोचू, इस वीडियो में मैं तेरे पूरा ऊपर से नीचे धुलाई कर दिए, ब्लास्टा मारा है। ब्लास्टा तेरे भाषा में वाटर ब्लास्टर, नॉट वाटर ब्लास्टर, वाटर ब्लास्टर मारा है मैंने। गोचू के हेटर हम लोग नहीं है। गोचू के हेटर, हेटा नहीं हेटर, जो सट्टू के सपाटरियंस लोग हैं, टट्टू लोग हैं, जो घोचू भाड़े के टट्टू, जो कमेंट में बैठ के घोचू के जी में कोयला फेंक के जाते हैं। जल जा करिया, जल के और काला हो जा। करिया पापा को छोड़ के जाते हैं। टिंगमुंगी के पास दो दो पापा, गोरा पापा, करिया पापा। गोरा पापा सगा पापा है, करिया पापा टट्टी धोयला पापा है। तो आज हम टट्टी धोयला पापा को वाटर ब्लास्टर मारेंगे। फिर नैना को मदनी शादी करके सऊदिया चला गया। नैना के चुल इतना चिल्लाए गिरा कि नैना पकड़ ली शाहरुख को। ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। लेकिन लोग आके मुझे कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह का खौफ कर, तुझ पे आएगा, तेरे बच्चों पे आएगा। भाई यहाँ से मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, जाके खोज ले, अपने बाप से पूछ ले, फीजी में चैनल मोनोटाइज नहीं होता है। घोंचू कीड़ा से मुझे सिर्फ चार सवाल पूछना है, चार, ओनली फोर। वन रिगार्डिंग हक महर दियादा। टिंगमुंगी जब जाती है तेरे साथ को सर के घर, तब वो कर मुंह में सवाल क्यों नहीं आती? तब दही क्यों जमा देती है? लगता है बिल्लो नीमक वाला स्टाइल से दही जमाती है, जो दही कभी हिलता भी नहीं है, हिलने का नाम नहीं लेता। बिल्लो ने सऊदिया में दिखाया था, आधा आधा किलो नीमक छोड़ के दही जमाती है। लगता है टिंगमुंगी के मुंह में तब उला दही जम जाता है। टिंगमुंगी और मिनमिनैया के बड़ी चुल मची रहती है भाई इब्राहिम से मिलने के लिए। तो ये जो चुल्ली लोग हैं दोनों जब बाहर जाते हैं, पाक वगैरह वगैरह वगैरह, तब इन चुलियन को इब्राहिम भाई क्यों नहीं याद आता कि पापा पापा? तुम्हें तो नहीं याद आएगा, करिया कल्लू पापा उनके, सेकंड हैंड पापा। सेकंड हैंड नहीं, रखेल पापा ना तुम तो उनके, रखाने वाला पापा। असली पापा तो उनके और है। तुम्हें तो कभी याद नहीं होगा कि चलो ड्रामा वाला बेटवा को भी घुमा दें। तभी दोनों तुम्हारी जो मिनमिनैया और टिंगमुंगी को चुल क्यों नहीं मचती कि भाई इब्राहिम को भी ले लो, वो भी वहाँ एंजॉय करेगा। जस्ट फॉर शूटिंग, फॉर व्यूज एंड फॉर कंटेंट तुम टाइटल लगा देते हो भड़ुआ पापा कि हमारे लड़की लोगन मांगे इब्राहिम से मिले, और हम जा रहे मिलने। तो इब्राहिम को पार्क क्यों नहीं लेके जाते? गोचू कहता है हेटर मुझे घेर के खड़े हो गए, जहरीले हेटर। देखना तेरे जी में जहर ना छोड़ दे हेटर। जिंदगी भर जेल फैल के मर जाएगा तू, और नोबिता भी नहीं मूतेगा तेरे मुंह पे। तब बोलेगा जा, हेटर ने जहर छोड़ा है, उन्हीं से बस प्याज बुझा ले, वही लोग मुंह तूत देंगे तेरे मुंह में। तू मरेगा ऐसे ही मौत से दल्ला। यूट्यूब पे बहुत कम आदमी हैं जिनको ये बात का नहीं पता है कि औरत को जिस्मी नुमाइश करके जो कमाई आता है वो मैं घर में बैठ के खाता हूँ, दैट इज़ हराम। तो जितना नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं बता देती हूँ जिस्मी नुमाइश के मतलब। हम इस्लाम में औरतों के तो पूरा ऊपर से नीचे का पर्दा है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, हम इस्लाम में औरत का पर्दा है सर से पाँव तक। तो जो आदमी अपन औरत के चेहरा भी दिखा दे तो बहुत उसके कमाई आती है चेहरे को शूट करके, तो वो हराम है। ये तो अपन आगे बत्ती पीछे डिक्की सब दिखाती है, तो हराम ही हराम हो गया ना। ये तो नंगे भी इसके फोटो लीक हुए गए, लोगों ने बेच बेच के खूब खाया, सऊदिया तक पहुंचा, वहाँ तक के लोगों ने खरीदा इसके फ़ोटो 50-50 हज़ार में।
जो न्यू लोग इस औरत को देखते हैं उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती हूँ। अगर तुम लोग को मैं झूठी लग रही हूँ या कुछ, तो तुम लोग यही प्लेटफॉर्म पे मार के देखो सितारा यासीन गंदी फोटो लीक, देख कैसे आता धड़ाधड़, गरे पीला नीला हरा भरा रंग बिरंगा दिखेगा ना तुम्हें, और रंग बिरंगे बंदों के साथ भी दिखेगा, क्योंकि ये इसके करतूत है। अब क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहती ना आगे, ठीक है, हम चलते अपने बातों पे। तो यूट्यूब पे सब आदमी को पता है कि जो हम के औरत के नंगा पुंगा चले हैं यहाँ पे, इससे पैसा आई, तो अपन अपन औरत लोग के बताए है कि और नंगा हो जाओ, आज तुम थोड़ा और छोटा कर लेना, पैसा आएगा, द शो मस्ट गो ऑन, इज्जत आनी जानी चीज है। अभी वो औरत के रख लो, इकरा इकरा भैया सिस्ट्रोलॉजी वाली, ओकर जो गरीब बंदा है उसे बिल्कुल शर्म नहीं, अपनी औरत के आगे कैमरा पीछे मारता रहता है, बिल्कुल गोचू है, वो भी गोचू है, घर में बैठ के खाता है, आगे पीछे कैमरा मारता है। अभी ईद पे औरत बस समझो बगैर बाजू वाला कपड़ा पहनी थी, बिना बाजू के, छोटी सी 1 इंच की डोरी लटका हुआ लगा था, और पूरा हाथ उसके पूरा नुमाइश चलत रहा। खूब पैसा है भी ना, और वही खाएंगे, वही से घूमिए, वही छोटी लड़की पाली, इला हराम नहीं है देखने वालों के लिए ना, किताब में तो हराम है। मुझे आके लोग हदीस से पेश कर रहे हैं, कमेंट में लिंक लगाते हैं, तो हदीसों के लिंक लगाते हैं ना, तो मैं भैया तुम लोग के बता देता है, हम सब हदीस सुन लिया, अच्छा सब के इल्म है हमें, अब हम सुनता नहीं, अब हम सुनाता है, अल्लाह ने उतना कुदरत दिया है। तो ये घोचू आ गया, वो तो औरत के कमाई खावे, हाँ? अपनी औरत के ही कमाई खाता है। तो मेरे घोचू से सिर्फ 4 सवाल है, ओनली 4, नो मोर देन 4 ना। तो घोचू तुम 4 साल से व्लॉग्स बना रहे हो ना, सट्टू 5 होइगे, तुम्हारा 4 होइगे, तुम्हार हर एक दिन वीडियो आता नहीं आता, जब भी आता सेकंड वाइफ के साथ आता ना। तभी जो निजाज के बेटी है, जिसे नहीं पता है गोरा को पापा बोलूं या काला को, वो कभी नहीं पूछती पापा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सेकंड वाइफ, पापा पापा ये सेकंड वाइफ क्या है, पापा पापा तुमको सर के क्यों चाटते रहते हो, क्यों नहीं पूछती, अपनी माँ से भी नहीं पूछती है। तुम तो एक रात भी गुजारे हो टिंग मुंगी के लेके कुसर के घर में, गुजारे तो नहीं हो, सुबह जाके फिर शूट करे हो, और टिंग मुंगी सोने का नाटक कर रही थी, साफ नजर आ रहा था। तब उसने नहीं पूछा कि पापा पापा इस चुईया के घर में हम लोग रात दिन शूटिंग क्यों करते हैं, करिया पापा हम लोगन इस चुईये के आगे पीछे कैमरा क्यों मारते हैं, तू तो मारता है, मेरी माँ भी मारती है, क्यों नहीं पूछती टिंग मुंगी ये बातें। तो चलो टिंग मुंगी को छोड़ते हैं, ठीक है। अभी सबको पता है बिल्लो रानी तीसरा शादी के बाद अपने तीसरे हस्बैंड को सिर्फ हक महर के लिए छोड़ दिया, कि इस आदमी ने मुझे हक महर नहीं दिया है और मैं इसे छोड़ रही हूँ, और छोड़ दिया। तो सराइकी फैमिली, हम सराइकी फैमिली और सराइकी कम्युनिटी में रहते थे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 98% निकाह पे हक महर में ज़मीन और प्लॉट वगैरह ऐसे देते थे ना, वही प्लॉट बोलूँ, वहाँ का बड़ा बड़ा बहुत ज़मीन होता है, प्लॉट प्लॉट देते हैं, हक महर में लिख देते हैं, खाली लिख देते हैं, हो ना हो लिख देते हैं, या तोले पे तोला गहना लिखते हैं। चलो भैया तुम्हें 5 तोला, मेरा तो 5 तोला था, आई हैव गॉट इट, घर पे सास के पास ना, वहाँ रखा ने। तो कुसर के 5 तोला गहना कहाँ है 1-2 तोला में नहीं काम चले, सराय की फैमिली में ज़्यादा लिखवाते हैं। कोसर के हक महर, तुम तो भाड़ा लड़के के फीस चोरी करके चल दिया रहा तुम, अकॉर्डिंग टू सट्टू ना। कोसर के हक महर कहाँ है, निकाह तो तुमने कोसर से किया नहीं है, हक महर तुमने अरशद को दिया है, कोसर को नहीं। कोसर को लाया, अरशद को जमीन दान कर दिया, जहाँ पे वो खेती करता है चोलिस्तान में।
अरशद के पास बहुत सारा ज़मीन है चोलिस्तान में, ठीक है, जो घोचू ने उसे दिया है कोसर के बदले में। तुम मुझे अपने वाइफ के साथ ZZ वाला ड्रामा करवाओ कि रात जाता हूँ रंगीन करके, सुबह बाथरूम के रास्ते से आता हूँ, तो इला शूटिंग के लिए ये ज़मीन बेटा तेरा आज से, ये वाला भी तेरा बेटा, 1 साल के लिए तेरा ये ज़मीन है। मैं सुबह तेरी को सर के बाथरूम से निकलने का सीन करता रहूँगा। तो घोचू कहता है, हेटरो ने मुझे घेर लिया। अरे कुत्ते का बच्चा, तुम्हें तो रोज़ाना हाइटर्स घेरते कमेंट में। तेरे हाइटर्स सट्टू के सपोर्टरिया ने। जाके घोचू के इस वीडियो के कमेंट पढ़ो, सब इसके जी में जहर छोड़ रहे हैं बैठ के। जल गया होगा अब तक तो तेजाब से, तेरा जी जल गया होगा तेजाब से। हराम दा पिल्ला कल्लू कहीं का हरामी, तू मरेगा ना, तुझे पानी क्या मूत भी नहीं नसीब होगा। ये नुबीता तेरे मुंह में मूतेगा भी नहीं, ठीक है। इतना जितना अभी गंदियां गालियां सब तुम पे वाजिब है। तो हम चलते हैं, बताते हैं तैयबा के मुंह क्यों बना रहता है ऑल द टाइम। शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ ग्रोन अप ना। तो इसकी अम्मा हर 2 दिन बाद कुर्सी पकड़ के बैठती है, नंगी औरत, अपन बत्ती आगे बारती है बड़ा आला, हेडलाइट ऑन, ट्रैफिक लाइटा ऑन, जावे एम्बुलेंस की तरह पक 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 करती है, खाली कोसर के रगड़ती है। कोसर ये, कोसर वो, कोसर ये, कोसर वो, गोचू ये, गोचू वो, चपर 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 चपर। काई लड़की नहीं सुने थोई, सब सुने। इनके घरे कर वो लोग बड़का स्क्रीन पे चले, बिल्लो बैठ के सुनती है, यू सुनती होगी। ये लड़की तो सब स्टोरी भी जाने कि हमारे बाप तो हम लोग के घर में सोए। हमारा अम्मा रोज उसके जानीकार बना के बताती है कि सर के नीचे दबा रहा रात के। तो लड़की समझे है, दैट्स वाई शी हेट ऑल ऑफ देम। ये बिल्लो की सबसे ज्यादा बुरी नजर से देखती है। हरामी बुढ़िया, मर जा तभी बराबर होगा, ऐसे बोलती होगी, उसके मुंह देख के मैं बता सकती हूँ। और जो टिंगमुंगी है ना, उसे तो मिनमिने या एक ही गाली देती होगी, अल्लाह करे तेरा असली बाप तुझे खींच के ले जाए यहाँ से, दोबारा तू इस गटर में ना आ, बस इर्द गिर्द मंडराना नहीं तुम सट्टू के, वरना तुम सट्टू 2.0 बन जाओगे। तो तैयबा हर बार जब भी मिनमिनैया टिंगमुंगी को देखती है, शी गेट्स एंग्री, वाइल्ड में बोलूँ, आई वुड से शी गेट्स वाइल्ड, एकदम फड़फड़ा जाती है। तैयबा टिंगमुंगी को देख के एकदम वाइल्ड हो जाती है, शेरनी की तरह। शी hates टिंगमुंगी the most, and then बिल्लो, and then सट्टू, and then घोचू। only she is happy with चंगुला बाबा। और कोसर के साथ वो ऐसे हिलती मिलती जुलती खेलती है जैसे वो उसकी सगी पुप्पो हो। है तो कज़न फुप्पो। कोसर मिनमिनैया के चाची भी लगती है, फुप्पो भी लगती है, लेकिन शी लव्स हर मोर देन दैट। हम लोग देखा है, उसके साथ ये रहे, बाल अच्छे से बनाती है, एकदम नहा धो के रहती है, नीट एंड टाइडी, अप टू डेट। सट्टू के तो रोज अपने सुहागरात मनाए, टाइम नहीं मिले, छुट्टी नहीं मिले तो लड़की कब सबराए, कब बोले कि मिनमिनैया नहा ले, बदबू मची पड़ी है, तू जवान हो रही है, वरना कल के तू भी गंधाएगी, तेरा बंदा भी इससे दूसरे के साथ सोने की एक्टिंग करेगा, और तुम्हारा बंदा ना तेरे साथ सोएगा और ना तू बंदे के साथ रहेगी। तो बेटा मिनमिनैया, तेरी बहन जो टिंगमुंगी है वो तो सट्टू बन गई है, बस तू ना बनना। तुझे अल्लाह दा वास्ता है, तू नहाया कर, धोया कर, सफ़े साफ सुथरे कपड़े पहना कर, इज्जतदार बन ले। अब तू बड़ी लड़की हो गई है, व्हाट्स द यूज़ ऑफ बीइंग अ टॉम गर्ल एट 24/7। 24 घंटे टॉम बॉय बनने का क्या मतलब है। अब लड़की बन जा, यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम स्कूल्स एंड ऑल। उर्दू पढ़ते हो ना स्कूल में, कायदा सिपारे जाते हो, मौलाना आता है, तो थोड़ा औरत वाला कपड़ा पहन लो,
तुम्हारा अम्मा तो नंगी के तरफ खसक रही है, तू पर्देदार बन जा। शायद थोड़ा भला हो जाए, माई के भी तुम्हारे बेशरम के शर्म आ जाए देख के। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।